ओके हमने जरूर तक किया था. So let's see if we can do the meanings. ताफू का मतलब याद है आप लोगों को? Pardon? Forgive. To pardon. To pardon. अफू से जी अफू से बिल्कुल. It's to lovingly forgiving, pardoning. ठीक है. तस्फहू Overlook. overlooking. बिल्कुल. तगफिरु तो पता ही होगा. I think that's easy. forgive To forgive. forgive Very good. अमवाल भी पता होगा. wealth, बिल्कुल. औलाद भी पता होगा ऑफ कोर्स. औलाद तो पता ही है. फितना क्या होता है? Test. Test. ट्रायल टेस्ट. यस. यूजुअली फितने को कंसिडर किया जाता है. उर्दू जुबान का जो फितना होता है वो डिफरेंट होता है. नॉर्मली अरबिक में इसको टेस्ट कंसिडर किया जाता है. ठीक है. अजरुन अजीम. फत्तकुल्लाह. फत्तकु then be being Conscious of Allah. ये तकवा का लफ्ज होता है. तकवा का लफ्ज that's coming from this as well. So this is to be conscious of Allah. बिल्कुल. यूजुअली ना कई ट्रांसलेशंस इसको फियर पे ट्रांसलेट करते हैं. तकवा इक्वल्स फियर. आई मीन आई डोंट फील दैट्स टोटली एक्यूरेट. Taqwa is being conscious of Allah, and when you're conscious of Allah, there are two things. एक मुस्लिम होता है ना, मोमिन, उसकी पूरी लाइफ दो इमोशंस के दरमियान में गुजरती है. एक होप और एक फियर. पूरी लाइफ दो इमोशंस के दरमियान में गुजरती है. फियर के am I doing enough so I can get into Jannah. Hope के Allah will always forgive me no matter what I do. ठीक है. Allah is forgiving. ये दो इमोशंस होते हैं. तो तकवा, इफ यू आस्क माय हम्बल ओपिनियन, कवर्स दैट दोस टू इमोशंस. और कॉन्शियसनेस जो होती है ना, उसका मतलब यही होता है. व्हेन यू कॉन्शियस ऑफ अल्लाह, देन यू आर एक्चुअली फ्लक्चुएटिंग बिटवीन दीस टू इमोशंस. ओके. एनीवे, इस्तताअतुम उर्दू का भी एक लफ्ज है. इस्तताअत होती है capability एबिलिटी, कैपेसिटी. बिल्कुल. तो इसको हमने स्पेशली देखा था. मस्तताअतुम का मतलब एज मच एज यू कैन. इस्माउ. listen लिसन. अतिउ. obey वे. अनफिकु. spend ली अनफुसिकुम. for Yourself. For yourselves. Good. Yuqa. Desires. No. shy away, No, nahi. when you Save. save, yeah, To save, to protect yourself. To Hmm. protect yourself. ठीक है. Good. Okay. All right. Shuha. This is your desire. So ये desire. Greed. Greed. Desire. Okay. नफ्सी ही तो पता होगा आपको. your is not His nafs. Muflihun. successful Successful. फौज और मुफलिहून का फर्क याद है ना? इसका Pause up. फौज एंड मुफलिहून लास्ट टाइम डिस्कस किया था थोड़ा सा हमने. yeah, fawz ज़ालिकल फौजुल अज़ीम. Fawzul और मुफलिहून is the ultimate success के when you are actually enjoying the bounties of your success. फौज के बारे में कहा जाता है कि it's a tough journey. After a tough journey, when it ends, you reach a point, a destination where you wanted to reach. That's fawz. Okay. तुकरिदु. loan Curse. Yeah, loan. लोन तो इसम हो जाएगा. To give loan. give You loan to give loan. ठीक है. Give loan. कर्ज़न हसना तो पता ही है आपको. युदाइफ. Increase. increase to Multiply.
Multiply. Multiply. Increase is ज़्यादा Okay. ज़्यादा यज़ीदु, ठीक है? रब्बे ज़िदनी इल्मा, that's increase. ओके, यह फिर कर लिया हमने, शकूर कर लिया हमने। शकूर का मतलब क्या है वैसे? Thankful. It's Well, appreciating. yeah, exactly. So when it's used with Allah, it's appreciating. Appreciate. शुक्र हम करते हैं, thankful होते हैं, right? So when it's used with Allah, it's appreciating. आलिमुल गैबि व शहादती, शहादती, Testify. Just evidence, everything. गैब के साथ. गैब के साथ, ठीक है? अजीजुल हकीम, good, चले, excellent, चले, this is closed. हम देख लिया, अब हम इस पे आगे बढ़ जाते हैं। कहाँ तक किया था हमने? उलाइका आज़म दरजात. So what context was this? What is wrong with what is with you that you don't spend in the path of Allah, and all the inheritance of the skies and the earth belongs to Allah? And the one who spends before the victory and fought before the victory is not equal. Those people have a greater rank. Okay? Their ranks are greater. That यहाँ तक पहुंचे थे हम. ठीक है? ओके, अब यहां से कर लेते हैं। मिनल लजीना अनफकू, so that should be simple for you. This is harf of jar, min, right? Al-lazina is the ism that is Ism. made jar. So this is jar, plural, masculine, proper, right? That's the sum. So it's basically this entire block is going to be your harf of jar fragment. यहाँ से आता है, अभी मैं इसको मार्क नहीं करता, इसमें आगे बढ़ते हैं। This is also your mawsul. So let's find the sila. So when we go ahead, we find sila. Anfaqu. Yes. Anfaqu का क्या मतलब है? To spend. It's a To field spend. to ठीक है, बिल्कुल. So this is going to be a fi'il which is a past. It has hum in it, right? To spend. Mim ba'di. Mim ba'di is again a harf of jar fragment. Ba'di नहीं ba'du. Why is ba'du and not ba'di? ये वो है ना स्पेशल Special मुदाफ और उसका Special. मुदाफ अलैह मिसिंग होगा फिर। Mudaf ilay missing है. Okay, it means the conversation is opening up now. Allah is not saying after what. Okay, they spend after. After what? He's not mentioning. ठीक है, इसकी दो तरीके से आप देख सकते हैं। एक तरीका ये देख सकते हैं कि पिछले कॉन्टेक्स्ट में ये डिस्कस हुआ है कि फतह से पहले जिन्होंने एक्सपेंस किया, ठीक है, उनका दर्जा ज्यादा है, मीनिंग फतह मक्का से पहले। तो जब बाद यहाँ पे यूज होगा तो इट्स इम्प्लिसिट कि वो फतह मक्का के बाद की बात हो रही है। सो देयर इज नो नीड टू मेंशन अ मुदाफ इलैह। दैट्स वन व्यू। द सेकंड व्यू इज कि फतह मक्का के बाद जब भी स्पेंड किया हुआ, आफ्टर वट एवर इंसिडेंट स्पेंड किया हुआ, तो दैट इज वाह। तो दिस इज स्पेशल मुदाफ, and of course it is missing a mudaf ilayh, special mudaf. Waqatalu, I think you know this. ऊपर भी qatala tha, and this is a past tense fail, ठीक है, and it has hum in it, ठीक है, that's pretty straightforward. Okay, al-lazi का सिला ढूंढना है. This is whole sila. Oops. पूरा. हाँ पूरा होगा वकातलू क्योंकि तक. वाव जी. तक है ना वाव। अब यहाँ ये तो पूरा एक ही जुमला इस फेल लिया है, ठीक है। अब बीच में वाव भी आ गया तो फिर वो कनेक्ट हो गया, राइट। सो दिस इज द एंटायर सिला। सो लेट्स मार्क इट। दिस सिला वाज आवर ब्लू, राइट, दिस वाज ब्लू सिला, ठीक है। और हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट, पूरा हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट बनेगा। एग्री करते हैं? जी. So when we were looking at this, we said Ulaika Adamu भी था और
और दरजन, हमने इसको कुछ मार्क नहीं किया था कि हमने कहा था ये तमयीज है, इट्स जस्ट देयर, यू कांट मार्क इट खबर और सो। अब मिन बाद ये उसी सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है ना, वो सेंटेंस जुमला इस्मिया था, जालिका से स्टार्ट हुआ था, राइट? सो जब मिन से स्टार्ट होगा तो क्या मार्क कर दे इसको? सी। दिस इज सी, दिस एंटायर बिट इज योर सी, ठीक है? ओके, सो लेट्स ट्रांसलेट। अब इसका लिटरल मीनिंग है फ्रॉम, सो दोज हैव द हायर रैंक फ्रॉम द ones who spent. The better translation would be compared to, right, in English, ठीक है? इसको मैं लिख देता हूँ यार, compared to, और from को मैं वे आउट कर देता हूँ ताकि you know कि we considered it. It's because of the English language we have changed the word just to make sense, ठीक है? The ones who spend, अब from after आता है यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे मेन अगर नहीं होता तो क्या ये जुमला फेलियर स्टैंड करता? Would Badu still operate? I mean, Allah could have said anfaqu ba'da. अनफकू बादन नसब बना सकते थे ना उसको। तो कई ग्रामेरियंस के हिसाब से ये मिन जो है, दिस इज आल्सो एन एक्स्ट्रा मिन, एक्स्ट्रा मिन, इट मे नॉट बी रिक्वायर्ड ऑल द टाइम। सो इसको आप मर्ज कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं वे आफ्टर, लेकिन वे आफ्टर पे कॉन्फ्लिक्ट ये आ जाता है कि जैसे ही फतेह मक्का हुआ इसके 2 महीने के बाद अगर कोई स्पेंड कर रहा है, इज ही काउंटेड और नॉट? ठीक है, तो यूजुअली इसको ट्रांसलेट नॉर्मली किया जाता है, इसी तरह किया जाता है, इनफिकू आफ्टर, इसको ग्रे आउट कर दें आप फ्रॉम को, डोंट मेंशन इट बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज में उसकी सेंस नहीं बनेगी, फ्रॉम आफ्टर, और इसको आफ्टरवर्ड्स कह सकते हैं, एंड दे फॉट। ठीक है, यहाँ तक स्ट्रक्चर क्लियर है? दिस वाज प्रीटी सिंपल। ओके, वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हमने क्या देखना है। कुल्ला के बारे में कुछ पता है? थिंक अबाउट इट। Everything. हाँ, क्या चीज है ये? कुल्ला क्या होता है? वो है ना मुदाफ, स्पेशल मुदाफ। स्पेशल मुदाफ होता है, स्पेशल मुदाफ होता है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सही है। वकुल्ला वअदल्लाहुल हक, अब यहाँ पे एंड लगा हुआ है, इट मींस इट इज कनेक्टिंग समवेयर एट द बैक। ये जुमला इस्मिया से कनेक्ट हो रहा है पीछे, और इससे पहले क्या था? फेलिया था, ठीक है, इससे पहले फेलिया था, ठीक है। हाँ, उससे पहले नहीं था, ठीक है। यहाँ पे अतफ लगा हुआ है और यहाँ पे स्पेशल मुदाफ आ गया। स्पेशल मुदाफ इज इन नसब, तो नसब की सेंस कैसे बनेगी? क्या ख्याल? मफूल। मफूल किसका? अब मफूल तो किसी फेल का ही होगा ना जी। Sorry, today my son made tea for me, so I'll enjoy that if you don't mind. तो अब ये जो कुल्लन है, मैं पता है जब इसम होता है ना नस्ब के अंदर, तो वो जाहिर है किसी फेल का मफूल होता है। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो फेल आता है और उसके बाद फिर मफूल आता है। यहाँ पे तो कनेक्टर आया और एकदम से वो आ गया नस्ब में इसम, और उस केस में हमने पढ़ा था कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो हो सकता है कुछ हिडन हो, राइट? अब वो हिडन के अंदर 2 चीजें हमने देखी थी, या तो फेल होता है उक्सिमो यानी आई स्वेयर, या होता है उस्कुर यानी रिमेंबर,
ठीक है, तो लेकिन जब उस तरह की सिचुएशन होती है ना, तो ये अतफ नहीं लगा होता, ये कनेक्टर नहीं होता यूजली इसके साथ। जब कनेक्टर लगा सकते हैं तो उस फेल को भी मेंशन कर सकते हैं, राइट? तो वो डायरेक्टली मेंशन होता है। तो ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये शायद आपने पहले किया नहीं है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देता हूं। दिस इज क्लियर कि दिस इज अ स्पेशल मुदाफ, एंड दिस इज नसब, दिस इज सिंगुलर, मैस्कुलिन एंड कॉमन, इट्स ऑल क्लियर। हमने इसके ऊपर लेबल देखना है। आपको ये ज़हन में रखना है कि जुमला इस्मिया के अंदर जैसे स्ट्रक्चर होते थे, ए बी सी, ए सी, सी ए एंड सो ऑन, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते थे, वैसे ही जुमला फेलिया में भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। फ्लक्चुएशंस हैपन, 1 2 3 4, it can be 1 3 4 and so on, right? It can even be 3 1 2. Okay, a maf'ul can come before the fail. This is that scenario. अगर आप इसके आगे देखेंगे, वa'ada, वa'adallahu, इसको डिकोड कर सकते हैं आप? वa'adallahu का क्या चक्कर चल रहा है इधर? Promise. And वादा is fail. Promise. नहीं, वादा एक word हो गया ना, वादा। वादा is वादा तो एक वर्ड है ना। अच्छा, वादा इस तो promise. एक चीज मैं बताऊं पहले आपको, पहले एक चीज देखें। एक वर्ड है वa'ada, अगर मैं यूं लिखूं वa'ada, जिसमें आइन के ऊपर सुकून है, ठीक है, और एक है वa'ada जो अभी ऊपर लिखा हुआ है, राइट? सो दिस वर्ड जो मैंने नीचे लिखा है, दिस वाज एक्चुअली वa'adan, दिस वाज एन इसम मेड लाइट, ओके? जब बीच में सुकून आ जाता है तो वो इसम होता है, राइट? सो वादा तो नीचे वाला है, दिस वन, दिस इज एक्चुअली अ प्रॉमिस, बट व्हेन यू आर सेइंग वादा, इट्स लाइक nasara, means he promised, okay? That's a fail, okay? So it's a subtle difference है, but it's a drastic change in the meaning, okay? So ism temporary, ism permanent होता है, fail temporary होता है, बहुत बड़े बड़े फर्क पड़ जाते हैं, ठीक? तो इसको कंसिडर करना है हमने। So this is not wa'ada, this is wa'ada, it's like nasara. So I think we all see it's a past tense fail, right? It's a past tense fail, it has huwa in it. it's one and Allah is Ji, five. it's one, and the word Allah The word is rafa singular masculine proper. Oops, True. not in Arabic. Oops. Okay, rafa singular masculine proper. So this is going to be two. Two. Outside to her, right? Now that we know there is a jumla failure, we can come back and we can mark it a 3 because it's ism. This is one way of looking at it. Okay, there's another way of looking at it, but let's look at this one way first. Okay? और उसके बाद आ गया अल हुस्ना। that is अल हुस्ना, अब यहाँ पे मैं आपको एक रिमाइंडर दे दूं, ये हमने रिसेंटली ही कवर किया है। इल्मा किधर? अहसनु, the word ahsanu. awesome. Let's see if you can remember anything about the word ahsanu. It will give me opportunity to take 2 sips of my tea. Think about it, please. Azam. आसना। Azam. यार आपने एक सिप पे ही बता दिया। अच्छा, आजमू, बिल्कुल ठीक है। अब ये क्या था आजमू? What was it? Ism comparative. कंपैरेटिव था ना, जी। कंपैरेटिव था। लेकिन तो अल आ गया तो इसलिए जब अल आ जाता था उसके सामने तो क्या बन जाता था? वो सुपरलेटिव, सुपरलेटिव बन जाता था। अकबरू वर्सेस अल अकबरू, राइट? और उसका जो फेमिनिन फॉर्म होता है, आजमू का फेमिनिन फॉर्म था उज़्मा, राइट? अकबरू का था कुब्रा, अहसनु का हुस्ना। See? So this is a superlative feminine. You see that? Al-Husna.
This means the best. The best. Okay? अब सवाल पैदा ये होता है कि what is the status of this word? It's नसब होता है। non-flexible. सुपरलेटिव तो नसब नहीं होता। नहीं जरूरी नहीं है, हाँ। कोई भी स्टेटस हो सकता है ना। नहीं सॉरी। स्टेटस तो अब आपने इसका कॉन्टेक्स्ट को देख के डिटेक्ट करना है स्टेटस क्या है इसका। इज इट रफा, नसब और जार? जर कैन दिस बी jar? जर Can it be jar? नहीं Is there any reason you can find to mark it jar? नहीं हो जर सकता। नहीं सॉरी है। मैं तो कोई दफा Okay. ये जुमला फेलियर शुरू हो गया ना हम्म। वादा से। जी, जर नहीं हो सकता। तो jar होने के लिए उसको जरूरी था या तो ये किसी का मुदाफ इले होता, मुदाफत जी। ठीक है, या इसके पीछे हर्फ ऑफ jar होता, हम्म। right? That's not applying. Can it be rafa? नहीं, Rafa. जुमला Please. फेलिया में तो नहीं नहीं 1 2 3 होना चाहिए, नसब होना चाहिए। नसब होगा फिर। तो रफा क्यों नहीं हम कह रहे? रफा इसलिए हम नहीं कह रहे, हो तो सकता है रफा, ज़ाहिर है एक फेल है, उसके तो मल्टीपल डूअर्स हो सकते हैं ना, आउटसाइड डूअर्स। एक आउटसाइड डूअर तो हमें मिल गया, द वर्ड अल्लाह, राइट? दे कैन बी अदर्स, you can say Allah and Rasul promised, बिल्कुल right? You can say that, right? But अरेबिक के अंदर जब दो आउटसाइड डूअर्स आते हैं तो वो बीच में कनेक्टर से कनेक्टेड होते हैं, राइट? ऐसे ही नहीं आते डायरेक्ट। So that negates the fact that this can be rafa. Okay, so the only one left is nasab. So by deduction we know it's nasab. So it's basically nasab singular feminine proper. Oops, keyboard. Nasab singular feminine proper. This is a superlative. Okay, superlative form. And this is number 3. So एक एस्पेक्ट, एक तरीका देखने का ये है इस पूरे फ्रेज को कि दिस इज वन जुमला फेलिया that has two maf'uls. Okay? One is abnormal, meaning it's moved before muqaddam, kulla, and one is on the normal place. ठीक है? That's one way of looking at it. अब इसको हम ट्रांसलेट करके देख लेते हैं पहले, सही है? Let's translate that. कौन सी यहाँ पे कर रहे थे ट्रांसलेट, ठीक है? सिर्फ पहले है वो। वाव की वजह से हम कह रहे हैं हिडन। एंड हम कह सकते हैं एवरी वादा वादल्लाहु, Allah's promise Allah's promise. promised, is Allah. Allah promised, अभी मैं लिटरल लिख रहा हूँ, द बेस्ट, ठीक है? the best. ये लिटरल ट्रांसलेशन है। ईच एंड एवरी या ऑल, कुछ भी आप कुल्ला को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अब इसकी सेंस बनानी हमने, क्या क्या सेंस बनेगी? लेट्स ट्राई टू ब्रिंग इट इनटू मोर सेंसिबल इंग्लिश, ठीक है? एंड एवरी के बजाय अगर मैं कह दूं Each all एंड एवरीथिंग कह दूं, अगर मैं इसको यहाँ पे Everything Allah promised is the best. is the best. अब इस कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, but I have to put it, right? I have to put it somewhere. Is the best. That's one way of looking at it. अब इसके अंदर एबनॉर्मलिटी जो क्रिएट हुई है, कुल्ला पहले चला गया है, उस एबनॉर्मलिटी को कैप्चर करने के लिए I can either introduce exclusivity or specialness, right? So exclusivity आप कैप्चर करेंगे, आप कहेंगे कि only the promises Allah made, those promises alone are the best. That's exclusivity pass. अल्लाह के प्रॉमिस सिर्फ बेस्ट होते हैं। एक तो तरीका कहने का ये है, ठीक है? दूसरा कहने का ये है कि स्पेशली वो बेस्ट होते हैं। तो इसके ऊपर गारंटी का एस्पेक्ट ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं एंड एब्सोल्युटली
everything Allah promised is the best. To capture that structure fluctuation. ठीक है? ठीक हो गया? Father, sorry. जी 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 sorry है ना, go ahead. मैं तो ये कुल्लू का पूछ रही थी। कुल्लू जो है वो एक्चुअल स्पेशल मुदाफ है ना, उसकी फॉर्म चेंज हुई है यहाँ पर वह कुल्लन में, कुल्लऊ में। तो जैसे बादू में हुआ था तो जी उसका मीनिंग होता है कि मुदाफ इज मिसिंग, ठीक है। जी यहाँ जी पर भी मुदाफ नहीं है, लेकिन लाइक इस फॉर्म में कोई और डिफरेंट बात है या सिर्फ यही है? गुड क्वेश्चन। एक्चुअली ये इसका एक और तरीका देखने का ये इसकी वजह ये है कि मुदाफ इलैह यहाँ पे जो नहीं है, क्योंकि कुल्ला जो है वो टिपिकल मुदाफ स्पेशल मुदाफ की तरह नहीं होता। जो ट्रेडिशनल स्पेशल कुछ 4-5 मुदाफ स्पेशल मुदाफ ऐसे होते हैं जो एक नॉर्मल इसम की तरह ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है? कुल्लू इज वन ऑफ देम। ठीक है? जिसके अंदर आप उसको रफा नसब जर नॉर्मली बना सकते हैं विदाउट मेकिंग अ मुदाफ इलैह। दीज कुल्ला इज नॉट एन मुदाफ स्पेशल मुदाफ दैट always will come as a special मुदाफ। Sometimes it comes as a standardism too। ठीक है? तो इसकी वजह से आपको यहाँ पे वो नजर नहीं आ रहा एस्पेक्ट जो कि इसमें रफा हो गया हो। तो आई डोंट रिमेम्बर कि जो आपके नोट्स थे उसमें 4 स्पेशल मुदाफ सेपरेटली लिखे हुए थे कि सब एक ही ब्लॉक में लिखे हुए थे? अलग लिखा सब हुआ है एक ही वो, में थे। लेकिन लिखा हुआ कुल्लू है, लाइक द हाँ, वर्ड इज कुल्लू। लेकिन नीचे 4 अलग लिखे हुए थे, जी है ना? वो इसीलिए अलग लिखे हुए थे बिकॉज़ दे आर डिफरेंट। Okay? So mostly they are used as special mudaafs, but they can operate as a normal वो ism too। highlighted थे। ठीक है? तो चले so Father, an मेरा absolute भी जी जी प्लीज। मैंने सिर्फ ये पूछना था कि जब हम इन सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं तो हमें कोई फॉलो करना चाहिए कि हम मतलब फेल को कहाँ पे प्लेस करना है, मफूल को कहाँ प्लेस करना है, या जस्ट हैव टू मेक सेंस आउट ऑफ इट। प्लेसमेंट तो अल्लाह ताला ने हमें दे दिया ना कुरान में। यानी ये पूरा स्ट्रक्चर ट्रांसलेशन। तो हमारे पास मौजूद है, हमें बस डिकोड करना है ऑप्शंस क्या क्या बन सकते हैं। इसके नसब फॉर एग्जांपल कुल्लन के नसब होने की रैशनल हमें फाइंड करनी है। व्हाट कुड इट बी? तो अभी हमें यही समझ आती है कि ये एक जुमला फ़ेलिया है और उसका मफ़ऊल है जो मुक़द्दम हुआ है। इसके अलावा कोई रैशनल आपको समझ नहीं आ रही यहाँ पे। So you don't have, sometimes you have a flexibility of looking at things in 2-3 ways, but sometimes not really। क्योंकि आप यहाँ पे लैंग्वेज प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, बेसिकली डिकोड कर रहे हैं। लैंग्वेज इज गिवन टू यू ऑलरेडी, द स्ट्रक्चर्स आर गिवन टू यू। डज दैट जी आंसर योर क्वेश्चन? जी ठीक है। इसमें तो आप लोग किंग हैं इस तरह के जुमलों के अंदर, है ना? ये तो चाइल्ड्स प्ले होने चाहिए अब थोड़ा सा। बता देना मुझे जरा। Why is that? अतफ Allah, Allah is Muqtada. द Ism, वर्ड अल्लाह, लफ्जुल word जलाला। Allah. जी, दिस इज मुब्तदा। ओके। Bima is harf of jar. हर्फ ऑफ जर। Tamaluna is fail. फिर 1 and 2 1 and कौन 2. सी टाइप का फेल है ये? This is present, प्रेजेंट। active, active 1 2 एक्टिव। and it is इसके अंदर अंतुम। इसके अंदर अंतुम है। इसके बाद खबीरुन is रफा। रफा क्यों? प्रॉब्लम। ये क्यों फिर रफा वही हो गया? होगा। नहीं बटे सोचे, पता है आपको ये कौन सा? ये खबर है। किसकी बी खबर है? इट इज ऑफ वल्लाहु बिमा। वल्लाहु की खबर है। जी इट्स अ खबर ऑफ वल्लाहु। ठीक है, दिस वल्लाहु इज की जी। वल्लाहु इज अ मुब्तदा। तो और ये क्या चीज है सारी?
ये माँ है ना, मौसूल। माँ मौसूल। सिला और मौसूल। ये तो वो है This is मुतल्लिक बिल खबर। this is Mosul as well, right? जो ओ आप कह रहे सॉरी, हैं Mosul and Sila. Sila. That's true. ठीक है. What else? सी C. ऐसे हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक C है ना? सी भी जी हो सॉरी, जाएगा। सी Good. मुतल्लिक बिल खबर। Good. कर दें इसको ट्रांसलेट मुझे. And एंड Allah अल्लाह Allah knows whatever they do. वी डू। And Allah is व्हाटएवर Aware of. नोअर ऑफ खबीर क्या मतलब है? नोज का मुझे सुनाई दिया ना. नोज है ये कुछ और हो सकता है. नोइंग, मतलब नहीं, अगर खबीर नोइंग है, थिंक अबाउट इट, तो अलीम क्या है? all aware हो अरे, मतलब अगर aware आपको हर चीज की खबर हो तो आपको लोग क्या कहेंगे? यार ये बंदा हमेशा अवेयर होता है. अवेयर, Yeah. ठीक है अवेयर ना? ऑफ ऑल अवेयर. अल्लाह इज ऑल अवेयर बिमा तामलून. व्हाटएवर यू ऑल डू। अब व्हाटएवर यू ऑल डू से पहले कुछ लगाना पड़ेगा इंग्लिश में सेंस बनाने के लिए. बी को कैसे of ट्रांसलेट करें? ऑफ अवेयर ऑफ व्हाटएवर यू ऑल डू. गुड. मैंने कहा था ना, इसके तो आप लोग किंग्स हैं. ठीक है, ये चीजें तो आपको माशाल्लाह बड़ी अच्छी आती है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब जो आयत आ रही है ना, ये वाली है. और हाँ, इसके बाद भी जो आया, ये वाली जो आया है ना, you will find some similarities with what you did in Taghabun with this आया. ठीक है, let's start. इसमें एक छोटा सा ट्रिक है जो कि मैंने आपको बताना है, जो भी आपने नहीं किया हुआ. मन का बताया मुझे. क्या मन क्या है? इसम मौसूल। मौसूल ठीक है जी. दिस इज अ मौसूल, राइट? 4 प्रॉपर्टीज चाहिए मुझे इसकी. देखते हैं आगे ये. अभी लिख रहा हूं मैं मौसूल. हम अभी डिकोड करेंगे कि क्या चीज है ये. ठीक है, हो सकता है मौसूल हो सकता है ना हो. सही है. इट इज रफा सिंगुलर मैस्कुलिन मैस्कुलिन प्रॉपर। सिंगुलर मैस्कुलिन प्रॉपर. ठीक है, और कोई लेबल लग सकता है इसके ऊपर? ए अच्छा, एग्री करते हैं आप तक सब लोग? अभी हम इसको देखेंगे कि आगे कैसे कहानी बन रही है. ठीक है. अच्छा, जा का लफ्ज आप लोगों के लिए नया होगा यहाँ पे. जी ठीक है. आपने जा जो किया हुआ है ना पहले, वो कुछ ऐसा वाला किया हुआ है. आपको मैंने काफी पहले बताया था. जा, जाता जू जू और जी. जी sorry. Possessor, possessing, right? This za that you see in the ayah is not this za. This is different za. ठीक है, तो हम इसके ऊपर अभी फोकस नहीं कर रहे हैं. ये वाला जा नहीं है. जस्ट सो वी आर क्लियर, तो दिस इज नॉट दिस वन. जब जो आपने पॉइंटर्स पढ़े हैं ना, उस पॉइंटर्स को आपने ऐसे पढ़ा है, जालिका, राइट? दैट्स हाउ यू रेड द पॉइंटर्स. अब पॉइंटर्स को मैं ब्रेक डाउन बता रहा हूं आपको इसका फर्स्ट टाइम. ठीक है, जो पॉइंटर इस पूरे वर्ड में एक्चुअली पॉइंटर है, दैट इज जा. इफेक्टिवली जा मींस दैट. ठीक. जो ली लगता है, दैट इज जस्ट अ काइंड ऑफ अ कनेक्टर, glue. और का इज अ प्रोनाउन. ठीक है. इन अरेबिक लैंग्वेज जब आप जालिका कहते हैं, तो जा बता रहा होता है दैट, फारनेस, इट्स फार. और का बता रहा होता है कि आप किसको पॉइंट कर रहे हैं. यू पॉइंटिंग टू समथिंग सिंगुलर मैस्कुलिन. ठीक है. यू विल फाइंड वर्ड्स इन कुरान लाइक दिस. ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम ता'लमून.
This is also a pointer. जालिका, जालिका, जानिका, उलाइका, कहीं पे भी ये पॉइंटर नजर नहीं आएगा इस तरह आपको उस पूरे चार्ट में, right? But this is a pointer. Why this is a pointer? Because it has a za in it. And this li is just a glue, and kum tells us किसको point किया जा रहा है. ठीक है? That's how the pointers are constructed, the far ones. अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो आपको एक पैटर्न भी नजर आएगा. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ far pointer za. ठीक है? This is far, and the word ha indicates nearness because haza, right? So if you have let's say pointer which is ulaika, 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 ठीक है? If you have a pointer ulaika, तो pointer effectively is ulai. In fact, not even e, it's ula. That's the pointer. E is a glue and ka is where it is pointing. If I remove this ka and I add a ha before it, हाउला अब मैं इसमें कैसे ऐड करूं? हा उलाई. तो इसको आप अरबी में लिखते ऐसे हैं कि इसके ऊपर ये वाला स्टैंडिंग डैगर अलिफ लगा देते हैं और इस हमजा को आप हमजा की फॉर्म दे देते हैं, ये वाली. बेसिकली आपका बीच में पॉइंटर ऑलमोस्ट वही है. आपने एक इंडिकेटर लगा दिया हा उससे पहले, दैट शोज इट्स नियरनेस. ठीक है? So that's the construct that's happening here. This za is a pointer za, but it is pointing to allazi. It's not pointing to ka, kum or anything. It's pointing to allazi. ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो हमने पहले नहीं कवर किया हुआ. So I'll put it as a pointer which is coming from the pointer zalika, जो आपका ज्यादा familiar word है, zalika. ठीक है? Ka equals pointed to whoever this pointer is pointing to. ठीक है? Lam equals to glue. He is just connected in the middle, and the actual pointer is the za. ठीक है? Za pointer. That's how we have to remember this. ठीक है? ओके, अब क्योंकि हमने ये काम कर दिया, अब क्योंकि अब मैं जा कह रहा हूं, मुझे पता है मैं कहीं पॉइंट कर रहा हूं विच इज फार, राइट? कहां पॉइंट कर रहा हूं दैट इज अनक्लियर. जालिका के साथ क्लियर था, का था. जालिकुम के साथ क्लियर है, कुम है. ठीक है? लेकिन यहां क्लियर नहीं है, तो इसीलिए अल-लजी यहां पे आ गया. तो दिस इज नाउ पॉइंटिंग टू अल-लजी. ठीक है? दोज वंस या दैट वंस. ठीक है? इस तरह करके यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है. इज इट, आर यू गेटिंग इट? दिस इज मौसूल. oops, not this. Al-Lazi is मौसूल. ठीक है? It is basically pointed at. ठीक है? ये एक छोटी सी यहाँ पे एक एबनॉर्मेलिटी है, सही है, जो कि हमने पहले कवर नहीं की हुई, तो हमें कवर करना जरूरी है इसको करने के लिए. ठीक है? ओके. अब सवाल पैदा ये होता है, इसको आपने जरा सोचना है. हमने पहले इसको लेबल किया मौसूल, मन को. मन अगर मौसूल होता है तो उसको सिला चाहिए होता है, ठीक? और इसका मतलब होता है हु या हुएवर. ठीक है? हु और हुएवर. अब ये है दैट,
the ones, the one. अब जब आप इसको एक साथ रखेंगे ना एक सेट के अंदर, आप कहेंगे कि ये मौसूल है मन और दिस इज द सिला, तो इट विल नॉट मेक सिमेंटिक सेंस टू यू. ठीक है, who that doesn't make sense, whoever that और उसके साथ उसका ये अल्लजी लगाएंगे, it won't make sense. Whoever that the one, you won't be able to create that sense out of it, because of that complexity you will soon realize कि ये मन जो है, this is not a मौसूल मन, it is not giving you that sense, right? This is something else, something that you have done before. ये ऐसी चीज है जैसे मैं आपसे कहूं, what is that thing right there? What is that thing right there? Okay? इसमें जो what है, this is not an ism mausul what, this is a question what. ठीक है, it's a question what. जैसे हमने पिछली आयत में देखा, अल्लाह ताला ने कई जगह पे कहा मालकुम, right? Malakum, what is with you? This was also not a ism mausul ma, this was a question ma. Ma क्वेश्चन के तौर पे यूज होता है फॉर व्हाट, मन क्वेश्चन के तौर पे यूज होता है फॉर हु. ठीक है, सो अब आप ये देख रहे हैं कि जो माँ और मन है, जस्ट लाइक माँ, यू हैव सीन माँ इन अ negation case, you have seen ma in a mausul case, you have seen ma in a questioning case. 3 केसेस में आपने देखा हुआ है, राइट? मन को आपने अभी तक मौसूल केस में देखा हुआ था. Now this is the case where you're looking at it as a question one. Okay? This is the question one. So we won't mark it as mausul. We'll mark it as question. और इसका मतलब है who. अब क्योंकि ये क्वेश्चन है, ये प्रॉपर इसम है, दिस इज नॉट अ हर्फ, because it's no longer a mausul, you don't have to find the sila, it can operate independently on its own. And if you consider it as an independent ism, we know that ism mausuls are always proper and by default they are rafa. And totally हमने इसकी 4 प्रॉपर्टीज की हैं. It gives me total indication कि this has to be a मुब्तदा, which we already marked, right? अब इसके बाद क्योंकि हमने इसको मुब्तदा लेबल कर दिया, अब यहाँ पे हम इज लगा सकते हैं, राइट? अगर हम इसको मौसूल कहते हैं तो हम इज नहीं लगा सकते थे जब तक सिला कंप्लीट ना हो जाता, राइट? नाउ वी कैन पुट एन इज हियर बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन वन. जितनी खामोशी है ना इस क्लास में, मुझे लग रहा है रोजा रखा हुआ है आप लोगों ने, है? ज्यादा तो नहीं हो गया? नहीं डाइजेस्ट कर रहे हैं पर सीख. वो स्टीव जॉब्स ने कहा था कि इफ यू वांट टू मेक एवरीबॉडी हैप्पी, गो सेल आइसक्रीम. आइसक्रीम तो मेरे पास नहीं है, ठीक है? नहीं वो फाहमी, आप मेरा ये ख्याल है एक और चार्ट बनाना चाहिए जिसमें लिखा जाए कि मन कितनी जगह यूज हो सकता है और माँ किस तरह. हाँ नहीं ट्राई. everything you learn new is an uplift in your Quranic involvement, inshallah. Every simple thing, tiny thing you learn new is another door to Jannah, inshallah. ठीक है? तो वो जो आप कॉम्प्लेक्सिटी से गुजर रहे हैं ना अभी अपने माइंड के अंदर कि यार ये कैसे रिटेन होगा, कैसे याद रहेगा, ये होगा, अल्लाह ताला इज आफ्टर एफर्ट. आप हाईवे पे हैं, अब आप हाईवे पे जो जा रहे हैं उसके ऊपर आप अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हैं बस अब, ठीक है? दैट्स इट. तो इंशाल्लाह दिस विल गिव यू द रिटर्न.
अबे अभी तो स्पीड कम हो रही है, ज्यादा तो नहीं हो रही। नहीं जैसे जुनैद भाई जैसे पढ़ रहे ईसाया में ही हैं। वो कह रहे हैं युजाइफु, तो हमारा बढ़ अब इसके जाएगा। जुनैद, मैं इसकी एक बड़ी अच्छी सी मिसाल देता हूँ। देखो, जब गाड़ी चला रहे होते हैं ना, और गाड़ी क्यों? को 4th गियर से 5th गियर में डालना होता है, तो एक्सीलेटर से पाँव हटाना पड़ता है। ऐसा ही होता है जुनैद तो नहीं हटाता। ना? अरे 4th गियर में पहुंचना हो जुनैद गया। कहाँ से पहले तो लाइसेंस 1 से तो बनवाया निकल, है? अभी तो 1 से नहीं निकल रहे। मन इज रिलेटिवली हम्म, सिंपलर। माँ जो है ना, तन्मय। वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जी जी माँ जी, तो 11 टाइप्स ऑफ माँ हैं कुरान के अंदर बिल्कुल। तकरीबन। ठीक है, तो मन के ये यूज है। मन या तो मौसूल होता है या नॉर्मली वो होता है क्वेश्चन क्वेश्चनिंग, वर्ड, ठीक से। बेसिकली, नॉट मोर देन दैट। मैंने ये कॉम्प्लेक्स इसलिए हो गया कि ये जा यहाँ पे आ गया ना। जी। ये अगर जालिका लिखा होता तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना था, हम्म, राइट? तो इंशाल्लाह दैट्स फाइन। सो मन इज a mubtada and za becomes the khabar. Okay, who is that? Maza. Okay, who is that? ठीक है, और माजल लजी, who is that one? हम्म, Who is that one? ठीक है, okay, so who is that one? Who, the one who. Okay, तो अल्लाह ताला is asking a question now. पहले अल्लाह ताला ने क्या किया है? पहले अल्लाह ताला ने आपको बता दिया कि जिन्होंने, तुम लोग खर्च क्यों नहीं करते? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? What is the problem? You don't spend in the path of Allah. You think Allah needs it? Allah owns the entire inheritance of skies and the earth. It's for your own good. That's what he's telling you, right? In the previous ayahs. और फिर बताया कि जिन्होंने पहले खर्च किया था in the infancy of Islam, they have much higher rank than those who spend after, right? और उसके बाद अल्लाह ने जो वादा किया हुआ है, he is reminding us that is the best promise. What is the promise of Allah? The Jannah and the Jahannam, right? That is the best promise. ठीक है, Allah knows what you are doing. He's aware of it. अब Allah is asking that question. अब इस context में देखें. Now Allah has motivated you. Now he's going to ask you, who is the one? Who is the one among you? To do what? युक्रिदु. युक्रिदु क्या होता है? सूरह तगाबुन में पढ़ा था हमने। लोन लोन, टू गिव टू लोन। लेंड लोन। To lend a loan. ठीक है, इन तुक्रिदुल्लाह कर्दन हसना, ये पढ़ा था ना? वन तो Okay, युक्रिदु, to give loan. This is present tense. This is 1 and 2, right? And this is he gives a loan, literal meaning. ठीक है, that's what it is. Loan to whom? Allah. अब वही वाला पॉइंट आ गया यहाँ पे. This is a maf'ul number 3 as we see. ठीक है, give loan to Allah. What type of loan? Qardan hasana. This is maf'ul number 2. Again, this is maf'ul, and this is मौसूफ सिफा सिफा. सिफा। ठीक है, so who is the one who will give loan? अब यहाँ पे इसको आप फ्यूचर में ट्रांसलेट करें तो मेरे हिसाब से आपको ज्यादा सेंस नहीं लगेगी यहाँ पे. he will give loan. Who is the one who will give loan to Allah? Loan, good, a good loan. Who is the one who will give a good loan to Allah? Okay, فيضاعف فيضاعفه. युदाइफ पढ़ा हुआ है हमने, इंक्रीज ठीक, इंक्रीज, नहीं वो तो ज्यादा था. मल्टीप्लाई, Multiply, multiply. So this is basically ataf. This is present. This is 1 and 2. Okay,
थ्री भी होगा थ्री भी हो गया जी Who? 3 भी होगा बिल्कुल. एक्सेल मेरी जान खराब की हुई है. ओके ठीक है. युदाइफहु सही है. दिस सो he multiplies it. He multiplies it. Who is the one who's going to give the loan? So he multiplies it. Lahu, harf of For jar. you. harf of jar. It's as simple as this is number 4 for Yudaif for him. And ठीक है. for him. Multiplies it for him. But Allah ये नहीं बताते कि multiply when. In this world, in the next life. That's the hikmat of Allah, right? So Allah has the decision. Walahu ajrun kareemun. For him. And only for him. Yeah. Ji. So ajrun kareemun. This is what type of sentence structure is this? See. Mubtada कहाँ है? मुतालिक बिल खबर कहाँ है? खबर कहाँ है? Yes. अजरुन करीमुन खबर खबर होगी ना अजरुन करीमुन क्या है? खबर नहीं ये तो मौसूफ उसके साथ नहीं दूसरा का होगा ना. मौसूफ से युदाइफ. नहीं वला हु आ गया ना वला दैट इज हर्फ ऑफ जार. लेकिन ये दोनों इसम है, दोनों की प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, तो ये किसी की सिफा है. मतलब अजरुन इज बेस्ट रिवॉर्ड, तो ये मौसूफ सिफा ही है. बी. This is B. मौसूफ सिफा. ये कह रहे हैं ना आप लोग? जी. ठीक है. अच्छा. अब लेबल क्या लग रहा है इस पे? ए. इसको मुक्तदा नहीं कर सकते फादर. ये सी होगा ए ना. हाँ, स्ट्रक्चर common. फॉर ओनली. या This is a A. common मुक्तदा है ना? Common मुक्तदा. This common जी. मुक्तदा. जी. ठीक है. So this should be C. सी. ठीक है. Right. So when the mubtada is common, is it abnormality or not? Oops. No. Exclusive. Common No, it's not abnormal. नहीं. हाँ. ठीक है. Proper में होती है. जी. Relate मुक्तदा. पर ये वो और- एहतमाम तो फिर भी नहीं होगा, वो जो इख्तिसास और एहतमाम में. वो abnormal के केस में होता है. सही. सॉरी. अब क्योंकि ये abnormal नहीं है तो नहीं होगा. ठीक से. So ajrun is reward. Kareem is noble. ठीक है. For him is the noble reward who gives the qarz hasana to Allah. Okay? So Allah is questioning. Okay? अच्छा. नेक्स्ट आया जो है ना, मैं चाहूंगा कि हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करें. मैं एक पॉइंट आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो कि मैंने हमेशा सोचा आपके साथ टच करना है और मैंने नहीं किया अभी तक टच. यू नीड टू नो दैट. जुमला इस्मिया के अंदर नेक्स्ट 4 मिनट्स में हो जाएगा इंशाल्लाह, वेरी क्विकली. जब आपके पास सी ए स्ट्रक्चर होता है ना, सी ए स्ट्रक्चर, दिस इज सी ए स्ट्रक्चर. इट कुड बी a normal or abnormal structure. For example, लिखा होता है, for example, lahu qalamun. कलम कहते हैं पेन को, आपको पता है. ठीक है. सो आप इसको कह सकते हैं कि for him is a pen, right? That's a typical way we translate. लेकिन ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसको आप पोजेशन स्ट्रक्चर भी के तौर पे भी ले सकते हैं. पोजेशन स्ट्रक्चर, इट शोज पोजेशन. पोजेशन कैसे कि ये जो प्रोनाउन होता है हु, ही इज द ओनर, और जो मुब्तदा होता है दैट इज समथिंग ओन्ड. ओके. सो फॉर हिम इज द पेन. यू कैन ऑल्सो से ही हैज a pen. Okay.
ही हैज ए पेन। इस स्ट्रक्चर को इस तरह यूज किया जाता है पोजेशन के हिसाब से, जैसे हमने अभी पढ़ा लहू अजरुन करीमुन, ही हैज ए नोबल रिवॉर्ड। ओके, यू कुड आल्सो डू दैट देयर। ओके, इसको आप कह सकते हैं और ही हैज अ नोबल रिवॉर्ड। दोनों यहाँ पे चलेंगे। तो जो हमने अभी ट्रांसलेशन किया है दैट इज अ बिट मोर लिटरल ट्रांसलेशन। दैट्स जस्ट अ स्मॉल पॉइंट, हमने कभी इसको कवर नहीं किया। इसके अलावा भी एक दो हैं छोटे छोटे, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट टाइम बता दूंगा। सही है, सही। चले, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम मुलाकात करते हैं। जज़ाकल्लाह। ओके, हाँ, हाफिज, वालेकुम अस्सलाम।